My dear students and all my dear viewers, my today's class is on the Merchant of Venice and this is Act 3, Scene 3. This particular scene, Act 3, Scene 3, is just the continuation of the previous scene. Actually, in the previous scene, we had seen two important things. The first was Bassanio's choosing of casket, and the second thing was the information about Antonio, in which we had seen that Antonio's ship was wrecked and Antonio could not pay the debt or the money what he had borrowed from Shylock. We are just continuing with that particular situation and we are coming to this scene. Actually, this scene is shifting from Belmont to Venice. So let us go to Venice and let us see what happens there. Actually, the condition is here that this is the scene of a jail, and due to Shylock's complaint, Antonio has been arrested and he has been imprisoned. So particularly this scene deals with the conversation among the three characters, that is Shylock, Antonio and Celerino. These three characters are there. This is the scene of jail and the one jailer is also present there. Here Antonio is trying to convince or trying to say Shylock to forgive him and to just take back his complaints, but Shylock is rigid to have his bond. Actually, this particular scene, which is a very small scene, but it is very important regarding the advancement of the play, because this scene gives us information about the plan or the intention of Shylock, in which it has become clear that he will have 1 pound of flesh from Antonio's body. Apart from this, we can say this is also the preparation of the main scene, that is Act 4, Scene 1, that is the trial scene. So this is the preparation of this particular scene. So let us having any more introduction, we must be aware of the fact that in this particular scene, Shylock is telling to Gaoler. Here I am coming to the line now. So Shylock is telling to Gaoler. Gaoler means jailer. Shylock says to jailer, look to him. Look to him. Who is referred to him here? Antonio. यानी Shylock कहता है जेलर से कि इस पर कड़ी नज़र रखना. किस पर? एंटोनियो पर, क्योंकि एंटोनियो को यहाँ पर जेलर जो है वो जेल में रखा हुआ है. एंड टेल नॉट मी ऑफ मर्सी. और ये जेलर से कहता है कि तुम भी इसके बारे में मुझे मर्सी करने के लिए मत कहना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कह चुके हैं मर्सी करने के लिए. ये कहता है तुम भी ये मत कहना मुझे कि इस पर मर्सी कर दो, क्योंकि दिस इज़ द फुल दैट लेंट आउट मनी ग्रेटिस. क्योंकि ये वो मूर्ख है, एंटोनियो के बारे में कह रहा है, क्योंकि ये वो मूर्ख है जो क्या करता है, लेंट आउट मनी ग्रेटिस. ग्रेटिस का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट. ये लोगों को विदाउट इंटरेस्ट पैसा देता है. इसलिए ओ गॉलर, ओ यू जेलर, लुक टू हिम, इस पर कड़ी नज़र रखना. एंटोनियो रिक्वेस्ट करता है Shylock से और कहता है हियर मी येट गुड Shylock, ओ गुड Shylock, मेरी बात तो सुनो. Shylock कहता है आई विल हैव माई बॉन्ड. नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे सिर्फ मेरा बॉन्ड चाहिए. बॉन्ड चाहिए का मतलब बॉन्ड में जो चीज़ लिखा हुआ वो चाहिए. बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है? 1 पाउंड फ्लैश, एंटोनियो की बॉडी का 1 पाउंड मांस. स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड. मेरे बॉन्ड के खिलाफ कुछ मत कहना. आई हैव स्वॉर्न इन एन ओथ. क्योंकि मैंने एक कसम खा रखी है, मैंने एक ओथ ले रखी है, मैंने एक कसम खा रखी है. क्या क्या कसम खाई है Shylock ने? आई विल हैव माई बॉन्ड, कि मैं अपना बॉन्ड लेकर रहूँगा. मुझे अपना बॉन्ड चाहिए, किसी भी कीमत पर मेरा बॉन्ड मुझे चाहिए. मतलब जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ मुझे चाहिए. अब वो कहता है कि एक्चुअली वो इसका कारण भी समझा रहा है कि उसको उसका बॉन्ड ही क्यों चाहिए और वो क्यों इतना रिजिड है एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए. उसका वो थोड़ा बहुत कारण यहाँ पर देता है और कहता है कि डॉग कॉल्डेस्ट में डॉग, तुमने मुझे डॉग कहा, तुमने मुझे डॉग कहा. बिफोर द हैड ए कॉज, बिना किसी कारण के. तुम बिना किसी कारण के मुझको डॉग कहता था.
बट सिंस आई एम अ डॉग, और तुम जैसे मुझे डॉग कहता था तो मैं डॉग हूँ, और अगर मैं डॉग हूँ तो बीवेयर माई फैंक्स, फैंक्स मतलब टीथ, मेरी दांतों से सावधान रहना। अगर मैं डॉग हूँ तो मेरी दांतों से सावधान रहना। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, और जो ड्यूक है वो भी मुझे न्याय जरूर देगा, वो भी मुझे न्याय जरूर देगा। आई डू वंडर, क्योंकि वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि ड्यूक को न्याय जरूर देना पड़ेगा। इसी बीच वो कहता है जेलर से, ओ आई डू वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, यू नॉटी गॉलर। नॉटी का मतलब यहाँ होगा वर्थलेस, बिना काम का, बकवास। सो यू नॉटी गॉलर, वो वर्थलेस जेलर, दैट thou art so fond to come abroad with him at his request, कि इसके रिक्वेस्ट करने पर तुम बार बार इसको एब्रोड, एब्रोड का मतलब यहाँ जेल के बाहर, तुम बार बार इसके रिक्वेस्ट करने पर तुम इसको जेल से बाहर क्यों ला रहे हो। एंटोनियो कहता है, एंटोनियो फिर प्रे करता है, और एंटोनियो कहता है प्रे दी हियर मी स्पीक। एंटोनियो कहता है कि शैलोक से कि मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। शैलोक कहता है कुछ नहीं सुनूंगा। आई विल हैव माई बॉन्ड, मुझे सिर्फ मेरा बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड में जो चीज़ लिखी हुई है मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए। आई विल नॉट हियर दी स्पीक, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। आई विल हैव माई बॉन्ड एंड देयर फॉर स्पीक नोट, इसलिए तुम और कुछ मत बोलना, नो मोर, बिल्कुल मत बोलना। आई विल नॉट बी मेड, ये कहता है यहाँ पर कि आई विल नॉट बी मेड ए सॉफ्ट एंड डल आइड फुल, कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। डल आइड फुल का मतलब स्टूपिड, यू कांट मेक मी स्टूपिड, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। टू सेक द हेड रिलेंट एंड हाई एंड एल टू क्रिश्चियन इंटरसेसर, जो आमतौर पर क्रिश्चियन इंटरसेसर का मतलब होता है क्रिश्चियन लॉयर। जो क्रिश्चियन लॉयर के सामने जो आदमी मूर्ख व्यक्ति हर समय हाँ में हाँ मिलाता रहता है, मुझे वो मत समझना कि मैं क्रिश्चियन इंटरसेसर यानी क्रिश्चियन लॉयर के सामने टू सेक द हेड, कि मैं अपना हेड हिलाता रहूँगा, ऐसा तुम मुझे मत समझना। तुम मुझे रिलेंट का मतलब होता है सो पीटी, कि मैं तुम पर माथा झुलाऊँगा, तुम पर दया कर दूँगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। या मैं क्रिश्चियन इंटरसेसर के सामने एल्ड मतलब समर्पण कर जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फॉलो नॉट, मेरे पीछे पीछे मत आओ। कहता है डोंट फॉलो मी, ये कहता है एंटोनियो से कि मेरे पीछे पीछे मत आओ। मैंने पहले कह दिया है आई शैल हैव नो स्पीकिंग, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई विल हैव माई बॉन्ड, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए। और ये कहकर वो चला जाता है, यानी शैलोक यहाँ से एग्जिट कर जाता है। नाउ ओनली टू कैरेक्टर्स आर लेफ्ट ऑन द स्टेज, दैट इज सेलेरिनो एंड एंटोनियो। नाउ सेलेरिनो सेज हियर, इट इज़ द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल कर दैट एवर केप्ट विथ मैन। कर का मतलब होता है डॉग, और इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है हार्ड हार्टेड, यानी कठोर दिल वाला डॉग, कठोर दिल वाला कुत्ता। ये कहता है यहाँ पर सेलेरिनो कि आज तक किसी इंसान ने जितने लोगों को पाला होगा, जितने कुत्तों को पाला होगा, इसमें ये सबसे हार्ड हार्टेड डॉग है। इट इज़ द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल कर दैट एवर केप्ट विथ मैन। इंसान ने आज तक जितने कुत्तों को पाला होगा उसमें ये सबसे हार्ड हार्टेड डॉग है। तो यहाँ पर उसने क्या कह दिया, शैलोक को इम्पेनिट्रेबल डॉग कह दिया। इन्होंने कहता लेट हिम अलोन, इन्होंने कहता ठीक है जाने दो इसको, छोड़ दो इसको, जाने दो, लेट हिम गो। आई विल फॉलो हिम नो मोर बूटलेस प्रेयर्स, मैं इसके पीछे पीछे बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और जो प्रेयर मैं कर रहा हूँ यूजलेस हो रहा है, तो यूजलेस प्रेयर करने के लिए मैं इसके पीछे पीछे बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ही सिक्स माई लाइफ, उसे मेरी ज़िंदगी चाहिए। ही सिक्स माई लाइफ, हिज रीज़न वेल आई नो, और इसका मैं कारण जानता हूँ कि क्यों उसको मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए, इसका कारण मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आई ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम हिज, उसका क्या कारण देता है वो, कहता है उसका कारण देता है यहाँ पर, कहता है आई ऑफ्ट मतलब ऑफेन, अक्सर, डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फॉर फीचर्स मेनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी देयर फॉर ही हेट्स मी। ये मुझसे नफरत करता है, उसे मेरी ज़िंदगी चाहिए, मेरा लाइफ चाहिए, इसका कारण क्या है, वो मुझसे नफरत करता है। लेकिन अब सवाल उठता है नफरत क्यों करता है, एंटोनियो खुद इसका कारण कहता है यहाँ पर हिज रीज़न वेल आई नो, इसका कारण मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझसे नफरत क्यों करता है। इसका कारण ये है कि आई ऑफ डिलीवर्ड, मैंने अक्सर इसके पेनल्टी से बहुत सारे लोगों को बचाया है। शैलोक अपने जाल में फंसकर बहुत सारे लोगों को पेनल्टी दे रहा था, जैसे उस एंटोनियो को दे रहा है, तो ऐसे पेनल्टी वो किसी और के साथ भी करता था।
लेकिन वो व्यक्ति जिसको पेनल्टी मिलना होता था वो एंटोनियो के पास आता था और एंटोनियो उसको पैसे से मदद कर देता था, वो व्यक्ति उसको पैसा पे कर देता सैलोक को। तो बहुत सारे लोगों को सैलोक के क्रूएल्टी से, सैलोक के पेनल्टी से मैंने बचाया है और इसी का बदला मुझसे ले रहा है। यही कारण है ही हेट्स मी, मुझसे नफरत करता है। इन्होंने कहता है लेट हिम अलोन, यस हेट्स मी। सेलेनो कहता है आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रांट दिस फॉर फ्यूचर टू होल्ड। सेलेनो कहता है यहाँ पर कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ड्यूक भी इस तरह का क्रूएल जजमेंट, इस तरह का जजमेंट कि किसी व्यक्ति के बॉडी का 1 पाउंड मांस काट लिया जाए, इस तरह का क्रूएल जो जजमेंट है ये ड्यूक भी कभी नहीं सुनाएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा सेलेनो कहता है। एंटोनियो कहता है नहीं, द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ। ड्यूक भी कानून में लिखी हुई चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता। जो चीज़ कानून में लिखा हुआ है उस चीज़ को ड्यूक भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर द कॉमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव, कॉमोडिटी का मतलब है यहाँ पर राइट्स, कॉमोडिटी का मतलब यहाँ पर राइट्स और स्ट्रेंजर का मतलब है यहाँ पर फॉरेनर। तो जो फॉरेनर्स को जो राइट हमारे देश में यहाँ पर मिला हुआ है, इफ इट बी डिनाइड, अगर उसको डिनाई किया जाए, यहाँ पर फॉरेनर किसको बोला गया है, फॉरेनर बोला गया है यहाँ पर सैलोक को, क्योंकि सैलोक जो जीव है वो दूसरे देश से यहाँ पर वेनिस में आया हुआ है। तो कहता है यहाँ पर कि फॉरेनर को जो राइट यहाँ पर वेनिस में मिला हुआ है उसको अगर डिनाई किया गया तो क्या होगा, विथ मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ द स्टेट, तो वेनिस के न्याय प्रणाली पर सवाल उठ जाएगा। तो लोगों को वेनिस में जो न्याय होता है उस पर लोग संदेह करने लगेंगे। एंड सिंस दैट द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल नेशन, चूँकि हमारे देश का जो बिजनेस है, व्यापार है, हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी है वो दुनिया के हर एक देशों से है, तो हर एक देशों में एक खबर चली जाएगी कि वेनिस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो वेनिस का जो प्रॉस्पेरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगा, उसका ट्रेड जो होगा वो खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए देयरफॉर गो, इसीलिए कहता हूँ कि तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि ड्यूक भी इसको डिनाई नहीं कर सकता, तो फिर कहाँ, कहते तुम जाओ। दीज ग्रिफ्स एंड लॉसेज हैव नो सो बेटेड मी दैट आई शैल हार्डली स्पेयर ए पाउंड ऑफ फ्लेश टुमारो टू माई ब्लडी क्रेडिटर। तुम जाओ, क्योंकि ये ग्रीफ यानी ये तकलीफ और ये बहुत बड़ा लॉस यानी बिजनेस लॉस जो मेरे साथ हुआ है उसने मुझे बेटेड कर दिया है। बेटेड का मतलब मेरा वेट लॉस होता जा रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है, और इतना तेज़ी से मेरा वेट लॉस हो रहा है कि कल तक जो मेरा ब्लडी क्रेडिटर होगा, ब्लडी क्रेडिटर हैज़ बीन रेफर टू योर सैलोक, तो सैलोक को जो मुझे 1 पाउंड फ्लेश अपने बॉडी का देना है, शायद मेरे बॉडी में वो 1 पाउंड फ्लेश भी नहीं रहेगा, इतना तेज़ी से मेरा वेट लॉस हो रहा है। ये किसके कारण, ये ग्रीफ के कारण और लॉसेज के कारण। इसलिए तुम जाओ। वेल गॉलर, अब ये जेलर से कह रहा है, वेल ओ जेलर ऑन, तुम ऑन का मतलब प्रोसीड, यू मे प्रोसीड, तुम मुझको पकड़ कर अब जेल में डाल दो। प्रे गॉड, लेकिन गॉड से प्रे करो कि क्या बेसेनियो कम, कि बेसेनियो आ जाए। गॉड से प्रे करो कि बेसेनियो आ जाए। यहाँ पर मैं स्टूडेंट को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले सीन में बेसेनियो को दिखाया गया है कि बेसेनियो वेनिस के लिए चल चुका है पोर्सिया के कहने पर, और यहाँ पर वो एंटोनियो को बचाने के लिए आ रहा है, इसीलिए, लेकिन ये बात एंटोनियो को मालूम नहीं है, इसीलिए कहता है बेसेनियो कम, गॉड से प्रे करो कि बेसेनियो आ जाए टू सी मी पे हिज डेब्ट, और वो देखे कि उसके लिए, उसके कारण जो पैसा मैंने उधार लिया था उसको चुका रहा हूँ मैं किस तरह से, उसको मैं अपना जान देकर चुका रहा हूँ, उसके लिए लिया गया पैसे के लिए मैं अपना जान देकर चुका रहा हूँ। वो एक बार देख लिया कर, और अगर वो एक बार देख लिया कर तो क्या होगा, देन आई केयर नॉट, तो मुझे कोई परवाह नहीं है अपने मरने का, मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, सिर्फ बेसेनियो आ जाए और देख ले कि मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए, उसके लोन को चुकाने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ, बस इस बार वो देख ले। तो ये दोस्ती दोनों की यहाँ पर दिखा रही है, और यहीं पर ये सीन भी एंड हो जाता है। इस तरह हम लोग यहाँ पर इस सीन को पूरे लाइन टू लाइन पूरी अच्छी तरह से समझ लिया है, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन का इंतजार करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।